Our next topic is age-related body changes. It include musculoskeletal system changes in musculoskeletal system with aging. Decrease muscle mass, जैसे जैसे person की age increase होगी, the person muscle mass is decreased. Decrease muscle tone, slower muscle response, stiffness, decrease joint mobility, osteoporosis, because there is depletion of calcium from the bone, so the person is having osteoporosis. synovial fluid become more viscous, and जो synovial fluid है वो ज़्यादा thick हो जाएगा. loss of elasticity in joints. So these are the musculoskeletal system changes with aging process. Next is integumentary system. Increased dryness of skin, thinning of layer of skin, increased पिगमेंटेशन. ड्राइनेस ऑफ स्किन क्यों होती है? बिकॉज द सीबेशियस और स्वेट ग्लैंड सिक्रीशन is decreased, so that causes the dryness of skin. And facial lines and decreased elasticity of skin which causes wrinkling, skin wrinkling. ठीक है, जो elasticity skin की है that is decreased. facial line around the eyes, mouth and nose. hardness or dry of the nails, the nail become hard and dry, so they may crack easily. thinning of scalp hair, hormonal changes cause pubic hair loss, increased growth of nose, ear and facial hair because cartilages grow throughout the aging process, so there is the increased growth of nose and the ear. After that, next is cardiovascular system. In cardiovascular system, the heart rate is decreased because there is decrease in cardiac output, so heart rate is decreased to 60 to 80 beats per minute. And decrease elasticity of blood vessel, है ना, जो layers हैं blood vessel की वो उनकी elasticity कम हो जाएगी. irregular heart beat, arrhythmia हो सकता है, abnormal heart rhythm, increased blood pressure and more visible superficial blood vessel of the legs. बल्जिंग या वेरिकोसिटीज हो सकती है. आफ्टर दैट ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट होगा? नोज एनलार्जमेंट, इंक्रीज एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर. बैरल चेस्ट हो सकती है, इंक्रीज चेस्ट रिजिडिटी, इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट, डिक्रीज्ड इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी मसल स्ट्रेंथ, इंक्रीज साइज ऑफ एल्वियोलाई, बिकॉज जो एल्वियोलर वॉल्स हैं उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, सो द एल्वियोलाई बिकम एनलार्ज्ड. एंड डिक्रीज डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीजन इनटेक, दे कांट रिकॉइल properly, so the oxygen intake is decreased. After that, next is gastrointestinal system. Decreased saliva production and increased dryness, changes in taste and smell, decreased production of GI secretion, decreased peristalsis in stomach, alteration in bowel habit, decreased liver weight and also the liver enzyme. After that, next is genitourinary system. In genitourinary system, kidney size is also decreased, functional and output is also decreased. kidney के size, function, output कम हो जाएगा. reduced renal blood flow, जो kidneys को blood supply करती हैं, that is also decreased. decreased number of nephron, decreased bladder size and tone. इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टिंग होगी विच में लीड टू यूरिनरी रिटेंशन. यूरिनरी रिटेंशन होगा तो पर्सन को यूटीआई हो सकता है. एंड इंक्रीज बैक फ्लो ऑफ यूरिन, डिक्रीज ब्लैडर कैपेसिटी and the person is having UTI. After that, next is endocrine system. Decrease pancreatic insulin release, जो पेनक्रियास हैं दे उनका इंसुलिन सिक्रीशन कम हो जाएगी. ग्लूकोज टॉलरेंस डिक्रीज हो जाएगी. डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन्स डिक्रीज हो जाएंगे, FSH, LH, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ रेनिन, एंजियोटेंसिन, ADH, एंटीडायोटिक हार्मोन इज ऑल्सो डिक्रीज एंड थायरोक्सिन इज ऑल्सो decreased. After that, next is neurological system. These are the normal changes with the aging process. Neurological system में loss of brain cells, decreased number of neurons. न्यूरॉन्स कम होंगे तो नर्व न्यूरोट्रांसमिशन कम होगा. डिक्रीज न्यूरोट्रांसमीटर एंड नर्व कंडक्शन, डिक्रीज सेंसेशन.
बिकॉज ब्रेन सेल कम हो रहे हैं, न्यूरॉन्स कम हो रहे हैं, तो सेंसेशन कम हो जाएगा. डिक्रीज विजुअल एक्विटी, आईलिड लॉस देयर इलास्टिसिटी. जब आईलिड की इलास्टिसिटी कम हो जाएगी तो आईलिड ड्रूपिंग हो जाएगी. ठीक है, मतलब नीचे को लटक जाएगा थोड़ा. कंजक्टाइवा बिकम थिनर और येलो and decrease elasticity of the eardrum and decreased elasticity of the eardrum, decreased sense of smell, decreased touch sensation and decreased temperature regulation. After that, next is immunological system. In immunological system, decrease immune response, है ना, डिक्रीज, क्योंकि जो ओल्ड एज में क्या है, इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो जाएगी. डिक्रीज एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, डिक्रीज नंबर एंड फंक्शन ऑफ द टी सेल. देन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो जाएगी बीच में, लीड टू बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया. डिक्रीज सीरम काउंट, इंक्रीज dysuria, decrease speed of ejaculation, decrease vaginal lubrication. इन केस ऑफ फीमेल जो वेजाइनल लुब्रिकेंट होता है दैट इज ऑल्सो डिक्रीज एंड वेजाइनल एसिडिटी इज ऑल्सो रिड्यूस्ड. ब्रेस्ट बिकम पेंडुलस, है ना, ब्रेस्ट क्या है, थोड़ा लटक जाएगी, लूज हो जाएंगे ब्रेस्ट टिश्यू. निप्पल डिक्रीजेस इन साइज, यूट्रस बिकम स्मॉलर एंड सेसेशन ऑफ मेंसेस, मेनोपॉज हो जाएगा. डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, एफएसएच और प्रोजेस्टेरोन, हार्मोनल लेवल कम हो जाएगा. आफ्टर दैट द प्रमोशन ऑफ हेल्थ बिहेवियर इन द ओल्डर एडल्ट. की एल्डरली में हेल्थ को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, तो इट इंक्लूड डाइट. डाइट कैसी लेनी है, ईट डाइट लो इन फैट, बिकॉज उनको क्या है, रिस्क है हर डिजीज होने का, तो लो फैट डाइट लेनी है. और फैट कैसे लेने हैं, सैचुरेटेड फैट लेने हैं. एंड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल लेना है. देन पर्सन शुड चूज फूड हाई इन फाइबर रिच फूड लेना है और लो इन सोडियम. ठीक है, फूड शुड बी लो इन सोडियम, हाई इन फाइबर एंड हाई इन पोटेशियम विच इज हेल्दी फॉर द हार्ट. ओल्डर पर्सन शुड टेक एक्स्ट्रा वाइटामिन डी लेनी है बिकॉज बोन बिकम पोरस, है ना, तो एक्स्ट्रा वाइटामिन डी की जरूरत है. ओल्डर पर्सन शुड डू रेगुलर एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट 30 to 60 मिनट पर डे एंड cessation of CESSATION, cessation of alcohol or smoking. Older person should go for eye checkup regularly because visual abnormality हो सकती है, जैसे कैटरेक्ट हो सकता है उनको opacity of lens में अगर, so the person should go for a regular eye checkup. Older person should practice good oral hygiene with teeth brushing or flushing. Person should have annual checkup for blood study, है ना, annually मतलब साल में एक बार अपने complete blood test करवाने हैं. After that special consideration. Special consideration include प्रमोशन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, है ना, जो स्पेशल चीज़ों का ध्यान रखना है एल्डरली की, जैसे कि प्रमोशन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, रिस्पेक्ट फॉर द एल्डरली पर्सन, फीलिंग एंड इमोशन शुड बी शोन, है ना, कि अगर कोई of self respect and the dignity, respect for the elderly person, feeling and emotion should be shown. जो एल्डरली पर्सन की फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, या कोई अगर फैमिली में डिसीजन ले रहे हैं ना, तो उनको उस चीज़ में इन्वॉल्व करना है ताकि उनको एक रिस्पेक्ट की फीलिंग शो हो और डिग्निटी उनको फील हो. तो रिस्पेक्ट फॉर elderly person's feeling and emotion should be shown. Next is the promotion of the comfort of the elderly. Physical और mental comfort provide करनी है. There are many factors that contribute to the comfort of the elderly. So it include care of the skin, जैसे कि उनकी क्या है, स्किन ड्राई हो रही है ना, तो अप्लाई ऑयल ऑन द स्किन, है ना. केयर ऑफ बोनी स्ट्रक्चर्स, मेंटेन टेम्परेचर, जैसे उनको विटामिन डी या तो कैल्शियम रिच फूड देना है, मेंटेन टेम्परेचर, है ना, क्योंकि उनका जो बॉडी टेम्परेचर है लॉस हो जाता है इजीली. ठीक है, एक्सट्रीमिटीज़ उनकी ठंडी होंगी तो उनको टेम्परेचर मेंटेन करना है और फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करना है बिकॉज द एल्डरली पर्सन इज डिहाइड्रेटेड. सो नेक्स्ट इज द सेफ्टी. सेफ्टी में क्या ध्यान रखना है कि जो फ्लोर है अनपॉलिश्ड होना चाहिए, नॉन स्लिपरी हो, गुड लाइटिंग फैसिलिटी हो फॉर द इजी मूवमेंट ऑफ द एल्डरली एंड करेक्ट हाइट ऑफ द बेड. जो बेड है बहुत ज़्यादा हाइट का भी नहीं होना चाहिए, सो देयर में बी चांसेस ऑफ फॉल्स, है ना, करेक्ट हाइट होनी चाहिए. एंड चेयर एंड द प्रोविजन ऑफ वॉकिंग एड्स,
हैंड रेल्स कंट्रीब्यूट टू द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट, जो स्टेयर्स हैं वहाँ पे साइड रेल्स होनी चाहिए, वॉकिंग एड्स प्रोवाइड करने हैं अगर वो प्रॉपरली वॉक नहीं कर पाते हैं तो। फिर नेक्स्ट है डेली लिविंग एक्टिविटी। द पेशेंट इज एनकरेज टू बी आउट ऑफ बेड एज मच एज पॉसिबल। जो एल्डरली पर्सन है उसको एनकरेज करना है कि वो एक तो अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं डेली की वो खुद करे और बेड पे लेटा न रहे, वो वॉक करे, थोड़ा बहुत काम करे टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन सच एज प्रेशर सोर्स, डिहाइड्रेशन, थ्रोम्बोसिस एक्सेट्रा। क्योंकि अगर पर्सन जो है बेड पे ही लेटा रहेगा तो पर्सन इज मोर प्रोन फॉर थ्रोम्बोसिस और डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक्सेट्रा और प्रेशर अल्सर। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज द promotion of the independence. The elderly is encouraged to the maximum possible level for self care और decision making, है ना, कि वो अपनी केयर खुद करे और अपने लिए खुद डिसीजन ले, फैमिली के लिए डिसीजन ले, उसको इन्वॉल्व करना है। स्टाफ शुड गिव गाइडेंस, एनकरेजमेंट एंड सपोर्ट rather than try to control the whole life of the पेशेंट, है ना। जो भी उसके फैमिली मेम्बर है या जो स्टाफ है वो एल्डरली को सपोर्ट करे कि वो अपने लिए डिसीजन खुद ले, ताकि उसको ऐसा फील ना हो कि मेरी लाइफ को कोई और कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ मूवमेंट और मोबिलिटी। द पेशेंट इज एनकरेज टू बी आउट ऑफ बेड एज मच एज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटी एंड नीड। अब पेशेंट पर्सन की कैपेबिलिटी देखनी है एल्डरली की, वो कितना मूवमेंट कर सकता है, कितना चल सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको एनकरेज करना है टू बी आउट ऑफ द बेड। यूज ऑफ मेडिकेशन इन एल्डरली। अब जैसे जो एल्डरली है बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता, क्या है अगर मूव करेगा तो गिर जाएगा, है ना, तो उस वैसे को क्या है आपने सपोर्ट करना है, हेल्प करनी है, असिस्ट करना है मूवमेंट करने में ताकि फॉल्स ना हो। यूज ऑफ मेडिकेशन इन एल्डरली। ड्रग इंटरेक्शन इंक्रीजेज विद एज, है ना, एल्डरली में ड्रग एलर्जी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। सो देयर नर्सेज नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ वेरियस ड्रग एंड देयर एक्शन, साइड इफेक्ट एंड मस्ट यूज ड्रग कॉशियसली फॉर द एल्डरली, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पहले अगर रिएक्शन नहीं हुआ है तो अभी रिएक्शन ना हो। तो एल्डरली में क्या है, जो बॉडी है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी, रिएक्शन होने के चांसेस हैं। तो अगर रिएक्शन भी हो जाता है तो उस कंडीशन में भी ड्रग्स प्रिपेयर रखने हैं। After that, rehabilitation, it include all those activity which aim at restoring the patient to the highest degree of independent living. Then next is the health problem in elderly. ठीक है, देर आर डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम इन एल्डरली सच एज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। द एल्डरली इज हैविंग हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब ज़्यादा रिस्क है उनको, तभी लो फैट डाइट के लिए एडवाइस करते हैं। These are the common problem of cardiovascular system that are present in the old age. Prevention कैसे कर सकते हैं? Advise the elderly for regular exercise, योगा, थोड़ा movement करने के लिए, maintain healthy body weight maintain करना है, follow healthy eating plan including food, vegetable and low fat, dairy product और high fiber diet के लिए एडवाइस करना है। अवॉइड अल्कोहल और क्विट स्मोकिंग एंड टेक एटलीस्ट 1 hour sleep during day as it reduce the blood pressure and person should go for regular checkup. After that, neurological disease. Neurological disease include Alzheimer disease, which is also called as a dementia of अल्जाइमर टाइप। ये एल्डरली पर्सन में होता है कि उनकी जो मेमोरी है वो थोड़ा इम्पेयर हो जाएगी। इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर दैट अटैक द ब्रेन एंड रिजल्ट इन इम्पेयर्ड मेमोरी, थिंकिंग एंड बिहेवियर। एंड एजिंग के साथ साथ जो मेमोरी लॉस होता है दैट इज कॉल्ड एज अल्जाइमर डिजीज। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्लाइनिंग इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी विद ग्रेजुअल लॉस ऑफ मेमोरी एट लीस्ट वन अदर कॉग्निटिव फंक्शन। तो कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है? वन शुड कीप योरसेल्फ मेंटली बिजी रखना है, योगा करना है, डाइवर्ट करना है माइंड को, मेडिटेशन, डांसिंग, योगा करना है, बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट शुड बी टेकन एंड अवॉइड अल्कोहल और स्मोकिंग। देन इंटरवेंशन फॉर मैनेजमेंट। अगर किसी को अल्जाइमर डिजीज हो गई है तो कैसे मैनेज करेंगे? रिड्यूस द नॉइज, सोशल इंटरेक्शन टू द लेवल टॉलरेबल टू द
पेशेंट एंड टॉक टू पेशेंट स्लोली और कामली. जिसको अल्जाइमर डिजीज है उससे धीरे से बात करनी है ताकि उसको समझ आए. असिस्ट द पर्सन इन कैरिंग आउट एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ. क्योंकि लेटर स्टेजेस में क्या होता है, जो पर्सन है अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पाता है, वो कम्प्लीटली किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होता है. तो पेशेंट को असिस्ट करना है उसकी डेली एक्टिविटी कैरी आउट करने में, जैसे कि बाथिंग, ब्रशिंग एक्सेट्रा. आफ्टर दैट प्रोवाइड साइड रेल इन द स्टेयर्स एंड फ्लोर शुड नॉट बी स्लिपरी, नहीं होना चाहिए. प्रोवाइड एडिक्वेट लाइटनिंग इन हाउस एंड रिमूव अननेसेसरी फर्नीचर इन द हाउस बिकॉज दे मे कॉज द इंजरी टू द एल्डरली. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज द स्ट्रोक. न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है उसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम है स्ट्रोक. स्ट्रोक इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट एंड इज द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द पीपल अबव द एज ऑफ 60. यानी स्ट्रोक में क्या होता है, जो ब्रेन टिश्यू उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो इस्केमिक स्ट्रोक इज अ सडन ब्लॉक इन द ब्लड सप्लाई टू द brain causing an infarct to the brain leading to paralysis of one side of the body. So treatment क्या है stroke की? Person should adapt healthy lifestyle for regulating BP. क्योंकि इसमें जो hemorrhagic stroke है या क्यों होता है, ड्यू टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर की वजह से, है ना. हैमरेज हो सकती है, ब्लड वेसल रप्चर होगी और हैमरेज हो जाएगी. दे शुड गो फॉर रेगुलर चेकअप फॉर हाइपरटेंशन. दे शुड ईट हेल्दी डाइट, इंक्लूड ऑलिव ऑयल इन डाइट एज इट प्रिवेंट द एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ द वेसल. ये वेसल में प्लेग फॉर्मेशन नहीं होने देता. दे शुड स्टॉप स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजप्शन. After that, next is musculoskeletal disease. It include osteoarthritis, osteoporosis, hip fracture, gout. gout में क्या होगा, यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज हो जाएगा. These are the main disease present in old age. प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज एंड वॉकिंग, है ना. सनलाइट लेनी है. ईट अ बैलेंस डाइट इंक्लूडिंग milk, fruit, green leafy vegetable, regular intake of calcium and vitamin D and avoid smoking or alcohol, participating in regular weight bearing exercises and get a bone density to check the condition of the bone. जो कि बोन में कितने मिनरल प्रेजेंट है उसको चेक करने के लिए बोन डेंसिटी चेक करनी है. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम में मोस्ट कॉमन एल्डरली में प्रॉब्लम है डायबिटीज मेलाइटिस इज मोस्ट कॉमन. कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? सेम एक्सरसाइज डेली, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, योगा, रनिंग, एरोबिक एक्सरसाइज करेंगे जैसे कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. एंड पर्सन शुड मेक हेल्दी फूड चॉइसेस जैसे कि फूड विथ लो फैट, कैलोरी और सॉल्ट. टेक फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रेश फ्रूट्स. आफ्टर दैट नेक्स्ट है किडनी डिजीज. किडनी डिजीज भी क्यों होगी? ड्यू टू हाइपरटेंशन और अदर डिजीज, है ना. तो दीज अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ किडनी. किडनी नॉर्मली क्या करती है, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको डिटॉक्सिफाई करती है. तो किडनी फेलियर अकर ड्यू टू द डायबिटीज, हाइपरटेंशन और अदर डिजीज. इनकी वजह से किडनी फेलियर हो सकता है. प्रिवेंशन कैसे? कीप ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल, मेंटेन हेल्दी वेट, लेवल ऑफ फैट, कीप शुगर लेवल इन control. Then next problem is prostate enlargement, which is also called as BPH, benign prostate hyperplasia. So it is a common disease in old age. Person have problem with urination such as hesitation, interruption. It is a common disease in the old age. Person have problem with urination such as hesitation, urinary hesitation में occur, leaking हो सकती है which is also called as dribbling, or more frequent urination. How to prevent prostate enlargement? Person should go for regular distal rectal examination होगा to seek medical advice. After that next है respiratory problem. Aging process स्लोली डिग्रेड्स रेस्पिरेटरी सिस्टम. धीरे धीरे रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक्टिविटी को भी कम कर देता है, फंक्शन को कम कर देगा, स्ट्रक्चर एबनॉर्मल हो जाएंगे. तो कॉमन प्रॉब्लम आर ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस. सीओपीडी इज ऑल्सो द मेन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अकरिंग इन द ओल्ड एज. इंटरवेंशन इंक्लूड पर्सन शुड चेक रेस्पिरेटरी रेट, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, टीच द पेशेंट टू अवॉइड पॉल्यूटेंट इन एयर, अवॉइड स्मोकिंग ऑल्सो, एंड टॉट डायफ्रेगमेटिक और पर्स लिप ब्रीदिंग.
पर्स लिप में जो लिप्स हैं उनको प्रेस करके स्लोली एक्सपायर करना है. हेल्दी डाइट रिच इन विटामिन, मिनरल, कैल्शियम और फाइबर शुड बी कंज्यूम्ड एंड मोस्ट कॉमन सिसेशन ऑफ स्मोकिंग शुड बी डन. एंड आफ्टर दैट आई डिजीज में आई डिजीज लाइक नॉर्मली क्या क्या होती हैं, कैटरैक्ट है ना, आर द एज रिलेटेड मैक्यूलर degeneration, loss of vision, glaucoma are the major eye problem in the old age. How to prevent this? While reading or doing concentrated activity, rest your eyes. जब भी कोई एक्टिविटी करेंगे थोड़ी देर के बाद आइज को रेस्ट देना फॉर एटलीस्ट 5 to 30 मिनट इंटरवल है ना, 5 मतलब आधे घंटे के बाद थोड़ा सा आइज को रेस्ट देना है. ब्लिंक रेगुलरली एंड प्रॉपरली ताकि आईज में मॉइस्चर बना रहे. प्रोटेक्ट आई फ्रॉम डायरेक्ट सन रेज एंड रेगुलर चेकअप शुड बी डन. आफ्टर दैट लास्ट इज मेंटल प्रॉब्लम. मेंटल प्रॉब्लम इंक्लूड डिप्रेशन और डिमेंशिया. These are the most common mental illness present in the elderly person. डिप्रेशन क्यों होगा पर्सन को? क्योंकि जब उसके फैमिली मेम्बर उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उसको डिनाई करेंगे तो द पर्सन में फील डिप्रेस्ड एंड डिमेंशिया, मेमोरी इम्पेयरमेंट होगी. प्रिवेंशन कैसे करेंगे? टेक डाइट विच इज लो इन सैचुरेटेड फैट एंड रिफाइंड शुगर एज इट रिड्यूस द डिमेंशिया. एरोबिक एक्सरसाइजेस करेंगे, दिस रिड्यूस डिमेंशिया. योगा, लाफिंग क्लब एंड मेडिटेशन क्लब एक्सेट्रा शुड बी ज्वाइंट. दिस इज ऑल.